Good evening, friends. It is immense pleasure for me to welcome my dear child, my daughter, like my prodigy, the youngest, almost youngest child of PHF, but one of the most sincere um members of PHF. She takes care of all my courses and one of very sincere. She's basically my sister student, Dr. Manisha Soni student. Dr. Pranita Patil is from Virar, and the way she has picked up her practice and the way she understands the rubrics is something that I feel very proud of. And she has passed her BHMS from Virar Orthopedic Medical College, and now she is pursuing MD from the college which I have passed from. That is my parent college, Motiala Orthopedic Medical College, Nasik. She's practicing in Virar since almost 7 to 8 years. I think 10 years now. So, I don't have much to speak about her. We will know it by her knowledge and by her cases and by the way she handles the rubrics and understands the rubrics and understands the patient. We will come to know that why she is my daughter and why she is our child of nature. So, friends, let's welcome Dr. Anita Patil with really a very huge round of applause. You can unmute your calls and give her claps. Welcome, And Pranita. over to you, Beta, Anita. I'm there. Any problems? Dr. Mansi Madam is there. I am also there. Yes, sir. So we have started this Guru Prasad Guruvar since for more than years, and I think that this is 50, which lecture, Nine. beta? 50? 59. 59th lecture. 59th lecture. So we are almost nearing, only 40 are remaining now. So we have crossed a huge journey, and we don't feel as if we started it a year back. We feel just we started a month back, and 59 lecture today. So we have 59 videos on YouTube where every delegate has, every speaker has delivered fantastic lecture for more than 1 hour. So this, I'm sure, her lecture today is going to be very helpful for you in practical day-to-day practice. We are not uh, theoretical people. We are more into practice. So over to you, Pranita. Thank you, sir. Thank you for such a wonderful welcome. So I will really cherish these moments. Being welcomed by you is something, I will always keep in my heart. So I have no words. So thank you so much, sir. And thank you for, creating this platform for everybody, you are the first homeopath who has created this platform for free webinar series of 100 lectures. So it is really helping everyone. So thank you so much, and thank you so much for trusting me. Thank you. So today's topic is homeopathy simplified. So ये तुला हायलाइट कर बेटा, प्रणिता तुला हायलाइट कर. huh. So today's topic is homeopathy simplified. So whatever cases I'm going to share today, you will come to know why we have chosen this topic, why we have named the topic as homeopathy simplified. And of course, I have learned this from our beloved Guruji, Dr. Liaquat Namadeh sir. Whatever I am today is only because of sir. Otherwise, uh, 7 years before, I used to practice on classical method, and I used to find it very much difficult. There was a time when I got stuck, and my another mentor, Dr. Manisha Soni madam, who is a sister, she introduced me into the mind method. So I'm really grateful to both my mentors, you know. So because of them, I have reached here today. So I'll start with first case.
male patient of 48, 49 years came to me with abdominal pain. He came and he said कि मुझे पेट की तकलीफ होती है. तो मैंने पूछा क्या होता है, बोला कि 3-4 मंथ से मुझे पेट में दर्द होता है. सो ही वेंट टू जीपी. वहां पे उन्होंने बोला कि आपके पेट में सूजन है, इन्फेक्शन है. और उस वक्त उसको लूज मोशंस भी हो रहे थे. एक अक्यूट एपिसोड था लूज मोशन का. तो ही सेड कि उनके मेडिसिन से मेरा लूज मोशन रुक गया, बट पेट फुला रहता था और डॉक्टर ने बोला कि आपके पेट में स्वेलिंग है. फिर वो गया फिजिशियन के पास. ठीक है, तो वहां पे फिजिशियन ने उनको 1 मंथ का कोर्स दिया. तो उसने बोला कि जब भी मैंने वो मेडिसिन खाए तो मेरे पैर में सूजन आने लगी वो मेडिसिन के वजह से. सो देन ही केम टू मी. फिर उसने बताया कि एक मेरे पेशेंट का रेफरेंस बताया, उसको पैंक्रियाटाइटिस था और ही गॉट कंप्लीटली फाइन विद आवर मेडिसिन. सो ही सेड कि मुझे उन्होंने रेफरेंस दिया बिकॉज बोला कि आई हैव सीन दैट पेशेंट कि वो कितने फ्रिक्वेंटली एडमिट होते थे एवरी 15 डेज और मंथली. वो तो एडमिट होते ही थे जो पैंक्रियाटाइटिस के पेशेंट थे. और अभी उनमें जो डिफरेंस देखा है कि ही इज completely fine, he is eating outside food now, everything, he is living normal life. So uh, that made him came to me. So he said कि मैं कल आपके क्लिनिक में आया था और बाहर मैं ढूंढ रहा था क्लिनिक. तो फिर बोला कि मुझे बहुत भूख लगी थी और मैंने यहाँ पे देखा कि होम्योपैथिक क्लिनिक है. तो आई गॉट कंफ्यूज कि फिर वो बोला कि मुझे इतनी भूख लगी थी. फिर मैं गया बाजू में, यहाँ पे वड़ा पाव का स्टॉल है, तो उसने 2 समोसा खाए. बोला कि मैं कभी 2 वड़ा पाव या 2 समोसा मैं ऐसा नहीं खाता, बट मुझे इतनी भूख लगी थी कि मैंने 2 समोसा खाए और मुझे थोड़ा थोड़ा तकलीफ हो रहा था पहले. फिर भी उसने 2 समोसे खाए और बोला कि मुझे ज्यादा दर्द होने लगा. फिर क्योंकि उसको कंफ्यूजन था ये होम्योपैथिक क्लिनिक है, ही वाज नॉट अवेयर कि उसको होम्योपैथिक ट्रीटमेंट नहीं आप पीछे 2 हफ्ते की ले किया गए है. थे दवाई. हेलो, प्लीज म्यूट योरसेल्फ. तो ही वेंट होम. फिर वो नेक्स्ट डे वापस मेरे पास आया. तो मैंने उसको पूछा कि जब भी आपको तकलीफ होती है तो आपका मूड कैसे रहता है, स्वभाव में आपके कुछ बदलाव होते हैं. तो इसे स्वभाव में ऐसे बदलाव नहीं होते, बट मुझे काम करने की इच्छा नहीं रहती. जब भी मुझे तकलीफ होती है मुझे काम करने की इच्छा नहीं रहती. और मेरे मोशंस जो है वो रेगुलर नहीं है, इसे प्रॉपर नहीं होते. तो मैंने बोला मतलब बोले कि डेली मुझे होता है मोशन, बट वो म्यूकस के साथ होता है. और मुझे भूख भी बहुत लगती है. मुझे डॉक्टर ने नॉनवेज खाना बंद किया है. मैंने थोड़े दिन तक कंट्रोल करने की कोशिश की, बट फिर भी मैं नॉनवेज खा रहा हूँ. फिर कुछ दिन पहले मैंने मटन खाया, चिकन खाया. फिर उसके बाद मेरी तकलीफ और बढ़ गई. तो मैंने पूछा कि आपको ये इसके बारे में, आपकी जो तकलीफ है उसके बारे में कुछ टेंशन लगता है. तो बोला कि नहीं, ट्रीटमेंट चालू है तो मैं कुछ उस पे ध्यान नहीं दे रहा हूँ, मैं टेंशन नहीं ले रहा हूँ, मैं ड्रिंक्स भी ले रहा हूँ और मुझे ये प्रॉब्लम 3-4 महीने से है. तो नेचुरली ये प्रॉब्लम जाने के लिए भी वक्त लगेगा. बोला कि आई एम नॉट फाउंड ऑफ ड्रिंक, बट मैं मजे के लिए लेता हूँ. ऐसा मुझे ड्रिंक्स बहुत पसंद है ऐसा नहीं, लेकिन एंजॉय करने के लिए. उसमें मतलब गर्मी हो रही है, सॉरी, गर्मी हो रही है तो फिर ऐसा चलो आज ड्रिंक ले लेते हैं ऐसा. ठीक है. फिर बोला कि मेरा शरीर एक टाइम पे ऐसा था कि मैं कुछ भी खाऊं, मैं डेली भी नॉनवेज खाऊं तो भी मैं हजम कर पाता था. बट मुझे एक बार डेंटल प्रॉब्लम हुआ था, मेरे गम्स में स्वेलिंग आई थी और बहुत पेन हो रहा था. तो मैंने
जिसको हम पेरू बोलते हैं मराठी में, गावा। 2-3 मंथ्स मैंने कंटिन्यू ये फ्रूट खाया, गावा। फिर उसके बाद मेरा गम्स की स्वेलिंग तो चली गई, पेन भी कंप्लीटली चला गया, बट उसके बाद मुझे ये पेट की तकलीफ होगी, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि उसका साइड इफेक्ट ये हो गया। और मतलब पहले तो ऐसी सिचुएशन थी कि मैं मेरे बाकी लोगों को या मेरे फ्रेंड्स को बोलता था कि क्या तुम लोग इतना सा खाते हो, फिर तुम लोग को तकलीफ होती है, एसिडिटी होती है, आप डाइजेस्ट नहीं कर पाते हो। और क्योंकि मतलब मुझे कोई तकलीफ नहीं होती थी, कितना भी खाओ कुछ भी, मतलब डेली भी नॉनवेज खाओ तो भी। लेकिन अभी वही चीज मेरे ऊपर आ गई है, बोला जो मैं दूसरों को बोलता था वो चीज अभी मेरे ऊपर आ गई है। बोली जैसे ही मैं नॉनवेज सॉरी कुछ भी खाता हूँ तो मुझे दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। फिर उसने बोला कि जब मैं कल घर पे गया यहाँ से समोसा खा के, और बाद में मैंने देखा कि अपने पैर को स्वेलिंग आ रही है, फिर मुझे ऐसे लगा कि अभी मुझे मेरा रूट चेंज करना पड़ेगा। रूट मतलब जैसे कि एलोपैथिक ट्रीटमेंट ले रहा था और उससे अभी ये तकलीफ हो रही है, तो मुझे अभी ये रूट चेंज करना पड़ेगा, तो मैं वही अभी होम्योपैथिक डॉक्टर के पास ही जाता हूँ। सो दिस इज द केस, एंड पेशेंट गॉट completely फाइन विथ आवर मेडिसिन। कुछ भी उसको कभी भी पेन किलर या एंटासिड लेने की जरूरत नहीं पड़ी, एंड ही वॉज वेरी हैप्पी विद द रिजल्ट्स। सो नाउ यू कैन शेयर योर अंडरस्टैंडिंग। हेलो, you can unmute and share whatever you want to share. Have you understood the case? Hello, hello, can you hear me? आवाज आ रही है सबको? हेलो, होता है, आवाज येतोय व्यवस्थित. ओके। किसी को कुछ बोलना है केस के बारे में या कुछ नहीं समझा तो वो भी बता। हेलो, काय बेटा? हेलो, हेलो, निशा, यू वांट टू से समथिंग? you want me to speak बेटा? Pranita? No, no. सॉरी, You want me to speak something? No, ना? तूने मुझे अनम्यूट करने को बोली ना, इसलिए सॉरी. नो, आई एम आस्किंग देम कुछ ओके बोलना। ओके ओके ओके. हेलो, डॉक्टर संतोष, यू आर ट्राइंग टू से समथिंग? हेलो, केस समझा कि नहीं समझा? काही स्टार्टिंगचं परत एकदा सांग ना. ओके, कोणत्या पॉइंट पर्यंत? तो पेशेंट मेरे पास आया है, 48-49 ईयर्स का पेशेंट मेरे पास आया एब्डोमिनल पेन के लिए। कुछ भी खाता है तो उसको पेट में दर्द होता है और पेट एकदम उसका फूल जाता है। फिर उसने पहले जीपी के पास ट्रीटमेंट लिया, वहां पे उसको बोला कि आपके पेट में सूजन है, ठीक है, और इन्फेक्शन है। तो फिर उसके बाद उसको तभी लूज मोशन हो रहे थे, उसके लूज मोशन तो बंद हुए, बट वो बोला जो मेरा मेन प्रॉब्लम था पेट में दर्द होना और पेट फूलना, वो तो वैसा ही था। फिर वो फिजिशियन के पास गया, फिजिशियन ने उसको 1 मंथ का कोर्स लिख के दिया, ठीक है। उसमें प्रोबायोटिक और एंटासिड्स थे, उसने मुझे दिखाया था प्रिस्क्रिप्शन। फिर वो चालू करने के बाद फिजिशियन का ट्रीटमेंट, उसको पैर में स्वेलिंग आने लगी,
तो उसे लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। तो अभी हम अपना रूट चेंज करना चाहिए, मतलब मोड ऑफ ट्रीटमेंट चेंज करना चाहिए। कि उसने बोला कुछ तो है कि मेरे पैर में स्वेलिंग आ रही है। और निशा और कुछ चाहिए? नहीं दी ओके। हेलो, किसी को कुछ बोलना है? एक्सक्यूज मी मैम। हाँ बोलिए। पहले तो ये बंदा बहुत लाइट लगा, उसको लाइट रहना है लाइफ में, फ्रिवलिस है, अम्यूजमेंट डिजायर भी है। और उसने बोला ना मैंने गावा खाया था इसलिए शायद से मुझे प्रॉब्लम हो गई, इसलिए हाँ। डिलीजन इंजरी बीइंग इंजर्ड। और जब भी इसको तकलीफ होती है तो काम करने का मन नहीं होता, इसलिए बिजनेस इनकेपेसिटी फॉर। और इसे इसे पता था कि पेट में दर्द है, फिर भी उसने 2 समोसे खाए। हम्म। ये थोड़ा सा बहुत ज्यादा स्ट्राइकिंग लगा। क्या लगा? ये बहुत स्ट्राइकिंग लगा मैम। ओके ओके। पता है कि उसको तकलीफ है फिर भी वो खाया, मतलब ये कितना लाइट बंदा है, कोई टेंशन नहीं लेना चाहता। हम्म। ओके। यस। तो क्या लग रहा है आपको रेमेडी? नो मैम, अभी तक तो रेमेडी तक मैं नहीं पहुंची, पर बस केस से मुझे थोड़े से 2-3 टॉपिक समझ में आए। और अगर रेमेडी को देखो, एक तो लाइक को या फिर बेला आ रहा है। बेलाडोना? हेलो, और कोई? हाँ मैम, मुझे ना ये गवर्नमेंट लगा बंदा, और फ्रिवलस लगा। और जब वो बोल रहा था कि ट्रीटमेंट लिया उसके बाद से स्वेलिंग आ गई है पैरों में, और भी कुछ किया, एक और इंसिडेंस हुआ उसके बाद से ही उसको तकलीफ स्टार्ट हुई। तो डेल्यूजन इंजरी बीइंग इंजर्ड लगा मुझे। हम्म। और इसको सब तकलीफ है, फिर भी वो ड्रिंक कर रहा है, वो खा पी रहा है, तो फ्रिवलेस बहुत है। तो लैकिसिस एंड मक्स ऑल आर। ओके। वन मोर थिंग, ही इज हाइपरटेंसिव आल्सो। तो उसको 2 टैबलेट्स चालू थी एंटी हाइपरटेंसिव। तो उसने एक टैबलेट अपने आप बंद कर दी, ठीक है। और दूसरी टैबलेट बंद करने के लिए वो डॉक्टर के पास गया। तो डॉक्टर ने उसको मना किया बंद करने के लिए, मतलब बोला कि कम करके एटलीस्ट वो बंद हो जाए टैबलेट, क्योंकि उसको वो कंटिन्यू नहीं करनी थी। बट वो डॉक्टर ने उसकी टैबलेट कंटिन्यू रखी। फिर देन ही केम टू मी, मतलब ही वाज ऑन हिज रेगुलर फॉलो। तो फिर एक दिन उसने बोला कि इसमें मतलब ब्लड प्रेशर के लिए भी मुझे दवाई मिलेगी क्या, क्योंकि मुझे ये मेडिसिन नहीं लेना है। ठीक है, तो ये चीज मैं बताना रह गया था। सिस्टर लावा ब्लड डाला थे। जी। हेलो। मौसी को बोलना हो कपड़ा ये करने के लिए लाना होगा। अच्छा हे पोछा लगेल ना। हाँ तो मैम, इसीलिए तो फ्रिवलस है, और डेंजर, नो सेंस ऑफ डेंजर, तो इसीलिए मर्क्सॉल इज कमिंग मोर। व्हाई गवर्नमेंट, डेंजर नो सेंस? मतलब ही इज हाइपरटेंसिव, ही नोज ही इज हाइपरटेंसिव, एंड स्टिल अपने मन से ही उसने बंद कर दिया मेडिसिन लेना, विदाउट without any without referring any doctor or so. And then he knows he has a pain in abdomen, and मैम वो बीच में थोड़ा मिस हो गया था, उसका डायग्नोसिस क्या आया था? डायग्नोस नहीं किया था। उसका सोनोग्राफी यूएसजी नॉर्मल है। नॉर्मल है, ओके। पेन इन एब्डोमेन है, इतने डॉक्टर्स के पास में घुमा, फिर भी आपके पास आने के पहले ही एट वड़ा पाव एंड समोसा एंड एवरीथिंग।
तो अच्छा, I thought कि he has some sonographs, some pathology and still he is eating, इसलिए danger, no sense of danger आया। तो मैम लैकेसिस ज्यादा लग रहा है। ओके, तो मतलब यू आर कंपेयरिंग बिटवीन लैकेसिस एंड मर्क सोल, ऐसा? Yes sir। मतलब presuming that it is either lachesis or murk soil, there can be another remedy also. See, this is where we commit mistake, है? Like, कि अपन वो ऐसा लेकर चलते हैं कि ये दो आ रहे हैं, फिर इसके बीच में कंपेयर करो और दे दो। दिस इज बार्गेनिंग, यू शुड अवॉइड दिस। ओवरऑल फील क्या लग रहा है आपको? फिर रुब्रिक लो, फिर चलो। इट्स वर्ड ऑफ So कॉशन। what is lackesis only? I mean, lackesis. वो तो प्रणीता मैडम का केस, मुझे नहीं पता रेमेडी क्या है। लेट्स गो स्टेप बाय स्टेप। पहले ये सोचो कि व्हाई ही केम टू मी, है ना। हम स्टार्टिंग से शुरुआत करेंगे। जैसे सर हमेशा पढ़ाते हैं कि सर हमेशा बोलते हैं ना कि पेशेंट जब भी हमको फर्स्ट फोन कॉल करता है वहां से अपना केस टेकिंग स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसे कौन सी चीज है या क्या है कि उसकी वजह से पेशेंट हमारे पास आया। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज है। तो उसको लगा कि हाँ अभी इतने डॉक्टर से ट्रीटमेंट की है, फर्क नहीं पड़ रहा है, तो भी यहाँ पे जाए। तो इधर आने की भी कुछ वजह हो सकती है। मैम हेलो। हाँ सर बोलिए। वो पहले वेल्थ में था, वो बाकी लोगों को बोलता था मैं कुछ भी खाता हूँ हजम होता है, तुमको कैसे क्या होता नहीं। हम्म। और वो बीच में उसको इंजर हो गया, ड्यूरेशन वेल्थ इंजर भी नहीं इंजर। और इतना होके भी वो फाइवलेस है, इतना केयर नहीं लेता। बीपी की गोली की और वड़ा पाव खाना। हम्म। और वो आपको आपके पास आया क्यों? क्योंकि उसके फ्रेंड को अच्छा रिजल्ट आया ना पैनक्रेटाइटिस के केस में, हम्म। उससे इम्प्रेस होकर आ गया। अभी उधर वो पैथी में दो अभी वो करके देखे सब, अभी होम्योपैथी भी करके देखेंगे, ऐसा सोच के आया। ऐसा कर करके मुझे सल्फर लग रहा है। ये बट उसने उसकी ये फिर हम लोग अज्यूम कर रहे हैं ऐसा हो जाएगा ना। उसने ऐसा बोला नहीं कि होम्योपैथी इतना किया अभी होम्योपैथी भी ट्राई करते हैं, ऐसा सोचा। ऐसे उसने नहीं बोला। उसने क्लियर कट अपना बोला कि ये पेशेंट ने मुझे रेफर किया था। आप जानते होंगे क्योंकि जिसने रेफर किया था वो मेरा रिलेटिव भी है। तो फिर उसका रिजल्ट देखा क्योंकि वो मेरा करीबी दोस्त है और मैंने उसको देखा है कि वो एवरी 15 डेज और मंथली एडमिट होता ही था हॉस्पिटल में। और अभी जो वो सिचुएशन में है, मतलब अभी जो नॉर्मल लाइफ वो जी रहा है, तो उस मतलब मैंने देखा कि उसको कैसे फर्क पड़ा आपके मेडिसिन। पहले वो इस तरीके की लाइफ, मतलब वो इस तरीके से नहीं रह पाता था। बार बार एडमिट होना, किधर भी बाहर गया तो थोड़ा सा भी खा नहीं सकता था। फिर इसका सुपरस्टिशियस आएगा, पर लैक्टिस आ रहा है फिर। कैसे सुपरस्टिशियस? उनको फर्क पड़ा तो मुझे भी पड़ेगा, ऐसा वो उसको लगा ना। वो ये क्यों, सुपर मतलब आप एक्सप्लेन कर सकते हैं इसमें सुपरस्टिशियस कैसे रहेगा? उसका कोई कनेक्शन नहीं ना, उसको फर्क पड़ा तो मुझे भी पड़ेगा, ऐसा। मैम ये इम्प्रेशनेबल रहेगा ना सर? आप बताओ। हाँ मुझे तो इम्प्रेशनेबल लगता है। ओके सर, सुपरस्टिशियस मतलब क्या बाबू सर? हेलो। विदाउट एनी विदाउट एनी लॉजिक। ओके, तो यहाँ पे लॉजिक नहीं है क्या? अगर आपका कोई पेशेंट ठीक होता है, समझो कोई भी
पेशेंट है वो ठीक होता है, और वो किसी पेशेंट किसी और उसके फ्रेंड सर्कल में, फैमिली में किसको भी रेफर करता है, या फिर वो बंदा उसको देख के कि हाँ इन्होंने आपके पास से ट्रीटमेंट लिया और उनको ठीक लगा, तो मैं भी ये डॉक्टर के पास जाता हूँ, तो इसमें ये इलॉजिकल है क्या? अभी हाँ। आप सोचो, आप एक बात सोचो, आप आपने किसी को देखा, किसी डॉक्टर को जो सर के पास पढ़ रहे हैं काफी टाइम से, और उनके प्रैक्टिस में चेंज आ गया, ठीक है, या फिर कोई जनरल प्रैक्टिस कर रहा था एंड दैट डॉक्टर टर्न इनटू होम्योपैथी, आफ्टर स्टार्टेड लर्निंग फ्रॉम अवर गुरुजी लियाकत सर, तो फिर आपको लगा उनको देख के कि अरे इनके प्रैक्टिस में इतना चेंज आ गया, या फिर ये जीपी से होम्योपैथ बन गए, तो फिर मैं भी सर से सीखना चाहता हूँ, तो इसमें लॉजिक नहीं है क्या? फिर इम्प्रेशनेबल आएगा ही। और क्या आ सकता है? इम्प्रेशनेबल, ठीक है, और ऑब्जेक्टिव रीजनेबल भी हो सकता है ना। यस, दिस इज ऑब्जेक्टिव रीजनेबल, सही है ना, अगर उसको फर्क पड़ा तो क्यों नहीं जाना चाहिए हमने डॉक्टर के पास, और उसने सामने से बोला है, ये खुद मतलब उसने ना बोल के इम्प्रेशनेबल अगर मैं लेती थी, अगर उसने अपने आप देख के सोच लिया होता कि अरे इसको ठीक लगा, फिर मैं ये डॉक्टर के पास जाऊंगा, सामने से पूछ लिया होता कि भाई तू किधर से ट्रीटमेंट ले रहे हैं, ऐसे यहाँ पे पैंक्रियाटाइटिस के पेशेंट ने इसको रेफर किया है कि तू यहाँ पे जा, और फिर उसका जो रिकवरी देख के उसको ये लगा कि हाँ मैं यहाँ पे जा सकता हूँ, तो दिस इज वो वो रीजन बता रहा है ना, उसको जस्टिफाई कर रहा है वो क्यों आया। ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव रीजनेबल में ऑब्जेक्ट होता है, तो यहाँ पे इज जस्टिफाइंग कि वो क्यों आया, तो फर्स्ट इज ऑब्जेक्टिव रीजनेबल। आगे हेलो, आगे ठीक है, अभी वो क्यों आया अपने पास, उसके आगे उसने क्या बताया? हेलो, आने के बाद उसने क्या बताया? त्याने सांगितलं की त्याने 1 महिना जनरल प्रॅक्टिशनर कडून ॲलोपॅथिक मेडिसिन घेतले, पण निशु त्याचा हिंदी मेन बोलना, प्रॉब्लमच गैर ना सॉल्व करे। नाही झाला. उसने आने के बाद बोला कि मैंने 1 महीना जनरल प्रैक्टिशनर से मेडिसिन लिया है, लेकिन मेरा मेन प्रॉब्लम मतलब उसका मेन प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं हुआ. पेन इन एब्डोमेन हो गया उसका क्लियर, लेकिन लूज मोशंस क्लियर नहीं हुए. उसका नहीं मेन नहीं, कंसर्न उसका ही सॉल्व नहीं हुआ. नहीं, थोड़ा लूज सा मोशंस क्लियर हुए, कंफ्यूजन। पेन इन हाँ, एब्डोमेन. हाँ, पेन इन एब्डोमेन वैसे ही था, लूज मोशंस क्लियर हुए, तो उसका मेन कंसर्न फुलफिल नहीं हुआ. फिर इसकी वजह से वो गया फिजिशियन के पास, फिर फिजिशियन ने उसको 1 मंथ की ट्रीटमेंट दी, बट उसको क्या लगा कि ये दवाई से मुझे स्वेलिंग आ रही है पैर में, तो फिर उसको लगा कि अभी कुछ तो है, अभी हमें ट्रैक चेंज करना पड़ेगा, मतलब अभी एलोपैथी से हमें होम्योपैथी में जाना होगा, क्योंकि उसके एक दिन पहले वो आके गया था, बोला कि मैं शाम को आके गया था, लेकिन उसको कंफ्यूजन हुआ क्योंकि उसको पता नहीं था कि जो पेशेंट ने रेफर किया है उसने शायद नहीं बोला होगा कि होम्योपैथिक डॉक्टर है वगैरह, तो ये चीज क्या है, पूरा केस को समझो, फिर आप समझ पाओगे अच्छे से, हर एक चीज को हम रूब्रिक में कन्वर्ट नहीं कर सकते. नारळ आहे, तांदूळ घातलाय. तांदूळाची पिशवी नव्हती, तांदूळ
बामणाला ती पिशवी त्याच्याकडे माहित आहे का मला, तू मला कशाला जस्टिफाय करता? जैसे सर हमेशा सिखाते वक्त बोलते हैं कि कोर पकड़ो केस का, मतलब वो चीज आपको थ्रू आउट द केस दिखनी चाहिए। भले आप 2 रूब्रिक लो, लेकिन जो पक्के हैं, एकदम पक्के हैं रूब्रिक, आप एकदम कॉन्फिडेंट हो वो रूब्रिक के बारे में, बिल्कुल भी डाउट नहीं है, वैसे रूब्रिक लो। हमें हर एक चीज को रूब्रिक में कन्वर्ट नहीं करना है। सर हमेशा बोलते हैं कि रेपर्टरी इज अ टूल। तो टूल का इस्तेमाल हम कब करते हैं, वी ऑल नो, सही जगह पे उसका इस्तेमाल होता है, राइट। कोई भी साइज का टूल हम कहीं भी जगह पे उसको नहीं यूज कर सकते। और कोई बोलना चाहता है क्या? हाँ बोलिए, बोल बोल निशु। मैम ये मैथमेटिक्स एबिलिटी आ सकता है क्या? क्या? मैथमेटिक्स एबिलिटी उसने कैलकुलेट किया है कि अभी मुझे डॉक्टर के पास डॉक्टर चेंज करना चाहिए। इसमें मैथमेटिक्स क्या आएगा? कैलकुलेशन किया ना उसने, अभी एलोपैथी से फर्क नहीं पड़ रहा है तो हमें अभी होम्योपैथी में जाना चाहिए। रूब्रिक है मैथमेटिक्स एबिलिटी फॉर, तो इसमें से ये एक चीज में से आप डायरेक्ट, वही चीज मैं अभी बता रही थी कि हम हर एक चीज को रूब्रिक में नहीं जोड़ सकते ना। मैथमेटिक्स एबिलिटी इज समथिंग डिफरेंट, यहाँ पे मैथ्स का कुछ संबंध नहीं है। और इसमें से क्या एबिलिटी लग रही है आपको? ठीक है, मैं डिस्क्लोज कर देती हूँ क्योंकि और एक केस बताना है। तो देखो, ये बंदे को डॉक्टर ने बोला था कि आप परहेज करो, बट फिर भी ये खा रहे हैं, खाने का शौकीन है ये। मेरे पास आया, डॉक्टर को ढूंढते ढूंढते भूख लगी तो पहुंचा समोसे खाने के लिए, ठीक है। नॉनवेज बंद करने के लिए बोला है, फिर भी चिकन मटन खा रहे हैं। सो ऐसे शौकीन पर्सन को हम बोलते हैं गोरमंड, ठीक है। तो फर्स्ट इज ऑब्जेक्टिव रीजनेबल, सेकंड गोरमंड। और जो उसने बोला कि गावा खाया मैंने 2-3 मंथ्स, उसके बाद मुझे ये तकलीफ हुई, उसका साइड इफेक्ट हुआ, वो एकदम क्लियर कट बोल रहा है। सो दिस इज डिल्यूजन, इंजरी, बीइंग इंजर्ड। तो बीइंग इंजर्ड है ना, अभी उसको वो फीलिंग आ रहा है, वो उसका डिल्यूजन है कि उसकी वजह से मुझे ये हुआ, ठीक है। और जो एलोपैथिक मेडिसिन फिजिशियन ने प्रिस्क्राइब की थी, उसके बाद पैर में स्वेलिंग आने लगी। सो डिल्यूजन, पॉइजन, बीइंग पॉइजन बाय मेडिसिन, उसको ये लगा ना कि ये दवाई की वजह से उसको स्वेलिंग आने लगी, ठीक है। और जो उसने बोला था कि पहले मैं मेरे दोस्तों को बोलता था कि अरे क्या तुम लोग को इतना इतना खाने से तकलीफ होती है, और वही अभी मेरे पे उल्टा है। सो दिस इज सुपरस्टिशियस, ठीक है ना, कि मैं उनको बोलता था अभी वही चीज मेरे पे आ गई। सो यहाँ पे आप सुपरस्टिशियस सोच सकते हो। फिर उसने डायरेक्ट डायरेक्ट बोला कि जब भी तकलीफ होती है तो काम करने का मन नहीं करता है। किसी ने बोला था इनकैपेसिटी, इनकैपेसिटी नहीं है, इनकैपेसिटी में इसने बोला है कि काम करने का मन नहीं करता है। इनकैपेसिटी में मन रहता है करने का। इनकैपेसिटी का मतलब क्या, कि कैपेसिटी नहीं है उसके अंदर वो करने की। तो उसकी इच्छा हो सकती है काम करने की, बट वो कर नहीं पाता है, तभी हम उसको बिजनेस इनकैपेसिटी फॉर ले सकते हैं। बट यहाँ पे पेशेंट ने क्लियर कट बोला है कि मुझे इच्छा नहीं होती। सो दिस इज बिजनेस अवर्जन। तो ये सारे रूब्रिक को हम मिलाएंगे तो आता है लैकेसिस। तो आई गेव हिम लैकेसिस, विथ लैकेसिस 30 ही वाज मच बेटर। बीच में एक टाइम था कि उसका और आगे नहीं बढ़ रहा था रिकवरी। सो आई गेव हिम 200 से कुछ डिफरेंस नहीं आया। फिर मैंने वापस सोचा केस के बारे में, एंड आई फेल कि इसको अभी रिपीटेशन की जरूरत लग रही है, मतलब
सिंगल डोज से वो आगे नहीं बढ़ रहा है। तो जहाँ पे भी रिपीटेशन की जरूरत लगती है बट हमें सेफली मेडिसिन देना होता है, कुछ रिस्क नहीं लेते, ऐसे टाइम पे हम LN पोटेंसी के बारे में सोचते हैं। सो विथ लैकेसिस 0/1 ही वाज एब्सोल्युटली फाइन। ठीक है। और दूसरी जो चीज मैंने बताई थी कि वो हाइपरटेंसिव है बट उसको वो मेडिसिन नहीं खानी। ठीक है, हम फ्रिवलस सोच सकते हैं यहाँ पे, मैंने रेपर्टाइजेशन में नहीं लिया था, बट उसने एक मेडिसिन बंद की, दूसरी बंद करने के लिए वो डॉक्टर के पास गया, फिर डॉक्टर ने मना किया, फिर उसने मुझे बोला कि ये मेडिसिन नहीं लेनी है मुझे, तो आप मुझे BP का ट्रीटमेंट चालू कर सकते हैं क्या? तो उसको ये मेडिसिन नहीं लेना। तो ये क्या चीज है, कोई बता सकता है? केयर इंजरी बीइंग इंजरी, क्या? वो मेडिसिन से आगे कुछ तकलीफ नको होने को, इसके वास्ते नको है उसे। तो क्या बताया आपने रूब्रिक? fear of injury being injured. Okay, so more than injury it is fear of being poisoned. ठीक है ना, क्योंकि उसको ऑलरेडी एक मेडिसिन से पॉइजन वाला फील आया है, उससे उसको तकलीफ हुई है, पैर में स्वेलिंग आया है, तो ये मेडिसिन से भी उसको वो पॉइजन वाला फील उसके मन में है कि दो मेडिसिन चल रही है BP की। यूजुअली एक ही मेडिसिन रहता है ना हाइपरटेंसिव, बहुत कम पेशेंट्स ऐसे रहते हैं जिनको दो हाइपरटेंसिव चालू रहते हैं। तो उसने एक अपने आप से बंद कर दिया क्योंकि उसको यहाँ पे स्वेलिंग आया, फिर उसने BP का भी एक टैबलेट बंद कर दिया। और दूसरा बहुत ब्यूटीफुल रूब्रिक है यहाँ पे, मैरिज, आइडिया ऑफ मैरिज सीम्स अनएंड्यूरेबल। मैरिज मतलब क्या होता है कि आपका जन्म जन्म का बंधन होता है ना, जैसे इट्स अ लाइफ टाइम कमिटमेंट, once you get married with your partner it's a lifetime commitment, right? So यहाँ पे मेटाफरिकली हम सोचेंगे तो ये भी ऐसा ही है ना। अनएंड्यूरेबल मतलब क्या? नॉट एबल टू टॉलरेट। तो इसको वो ये चीज वो टॉलरेट ही नहीं कर सकता कि ये दवाई जिंदगी भर लेना है या दो एंटी हाइपरटेंसिव लेनी है, उसको वो बंद करना है, तो इसको लाइफ टाइम मेडिसिन नहीं लेनी है। तो जब भी पेशेंट बोलता है कि लाइफ टाइम मेडिसिन नहीं लेनी है डॉक्टर, ये मेरी मेडिसिन बंद कर दो, मुझे लाइफ टाइम मेडिसिन नहीं लेनी है, तो आप ये रूब्रिक के बारे में हमेशा सोचो, ध्यान में रखो ये रूब्रिक, मैरिज, आइडिया ऑफ मैरिज सीम्स अनएंड्यूरेबल, मतलब उसको जन्म भर या लाइफ टाइम दवाई नहीं खानी है। कितने पेशेंट बोलते हैं ना कि एंटी डायबिटिक टैबलेट या एंटी हाइपरटेंसिव टैबलेट वो तो लाइफ टाइम लेने पड़ती है, इसके लिए वो नहीं लेना है। इसके लिए मोस्ट ऑफ द टाइम दे कम टू अस, क्योंकि एलोपैथी में थायराइड का गोली जन्म भर लेना पड़ता है, डॉक्टर ने बोला, ऐसा बोलते हैं ना, डायबिटीज का जिंदगी भर लेना पड़ता है, हाइपरटेंशन का जिंदगी भर लेना पड़ता है, सो उनको वो नहीं लेना होता। ठीक है, समझा आपको ये? किसी को कुछ डाउट है? हेलो, किसी को कुछ डाउट है? Okay, so I assume there are no doubts. Let's move to next case. So second case है again 49 years की फीमेल है, again she is coming with abdominal pain। बोली 2-3 साल से मुझे पेन हो रहा है। जब वो आई मेरे क्लिनिक में, वो पूरा ऐसे टेबल के ऊपर बैठी और बोली कि मुझे, एंड कंटिन्यूअसली वो वैसी ही थी, ठीक है, तो बोली 2-3 साल से मुझे पेट में दर्द होता है, कई बार मैं एडमिट हो चुकी हूँ या फिर मैं डॉक्टर के पास जाके इंजेक्शन ले लेती हूँ, उतना टाइम तक ठीक होता है, फिर ये चालू हो जाता है। मेरा एंडोस्कोपी भी किया,
बोली कि पहले मेरा सोनोग्राफी हुआ था, फिर उसमें अपेंडिसाइटिस डिटेक्ट हुआ था, फिर मेरा ऑपरेशन हुआ। मुझे लगता था कि उसकी वजह से ये दर्द हो रहा है मुझे, लेकिन उसके बाद भी ये पेन कंटिन्यू था। फिर बोले एक बार वो कुछ स्पिरिचुअल इसके लिए बाहर गए थे टूर के लिए। बोली वहां पे मुझे बहुत दर्द होने लगा। फिर वहां के डॉक्टर को बताया तो उन्होंने बोला कि ये कुछ सिंपल दर्द नहीं लगता है, आप अच्छे डॉक्टर को कंसल्ट करना। फिर वहां पे टाइम बिंग के लिए उसको मेडिसिन देके वो बोली मैं कैसे कैसे नेक्स्ट डे या थर्ड डे बोली मैं बॉम्बे आ गई। फिर यहाँ पे मुझे डॉक्टर के पास लेके गए। फिर बोली मैं 12 दिन हॉस्पिटल में एडमिट थी। और फिर उसने बताया कि मुझे मामा ने आपका रेफरेंस दिया। फिर उसने उसके मामा का नाम लिया, मतलब मेरे पेशेंट ने उसको रेफरेंस दिया था। और वो मतलब वो एरिया के बहुत बड़े वो इसके रियल मामा नहीं है, बट वो एरिया के पॉलिटिकली लाइक उनका पूरा फैमिली बैकग्राउंड है पॉलिटिक्स में, तो ही इज वेरी नोन पर्सन इन देयर एरिया एंड वेरी हेल्पफुल। तो उनको सब मामा बोलते हैं। तो बोली कि मामा ने मुझे रेफरेंस दिया। मैं तो अभी थक चुकी हूँ, मैंने 2 साल से कुछ भी मेडिसिन नहीं लिया, मैंने सब बंद कर दिया है। बहुत ज्यादा तकलीफ हुई रात को वगैरह कभी, तो मैं डॉक्टर के पास जाके इंजेक्शन वगैरह ले लेती हूँ। अदरवाइज मैं ऐसा रेगुलर बेसिस पे मेरा कंटिन्यूस कोई भी ट्रीटमेंट नहीं चल रहा है। बट मुझे मामा ने बोला कि ये आखिरी बार तू ये डॉक्टर के पास जा, हमारे सब फैमिली का ट्रीटमेंट यहाँ पे चालू है, तो ये तू आखिरी कोशिश कर, मेरी बात सुन। बाद में तू जाके एटलीस्ट बात कर लेना डॉक्टर से, फिर तू देखना, लेकिन तू एक बार ये डॉक्टर के पास जाना। तो बोली कि मुझे उल्टी वगैरह कुछ नहीं होती, वॉमिटिंग नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ पेट में दर्द होता है। लेकिन जब भी दर्द होता है, ये लेडी फिशर वुमन है, वो मच्छी वगैरह बेचने बैठती है। तो बोली कि ऐसा दर्द होता है कभी कभी जब मैं मार्केट में भी होती हूँ, फिश मार्केट में, तभी भी इतना दर्द होता है कि मुझे वहां से उठना पड़ता है। वो मेरा वो काउंटर छोड़ के मुझे उठना पड़ता है। तो मैंने बोला इससे आपको आपके नेचर में कुछ डिफरेंस आता है? तो बोली कि नहीं, नेचर में कुछ डिफरेंस नहीं आता है। मेरी 2 लड़कियां हैं और मेरे हस्बैंड जाते हैं फिशिंग के लिए। तो वो जब भी जाते हैं वो 8-10 दिन घर पे नहीं होते, फिर वो रहते हैं। तो कभी हम दोनों रहते, कभी जब भी मेरे हस्बैंड फिशिंग के लिए जाते तो वो 8-10 दिन में अकेली घर पे रहती हूँ। तो मुझे कुछ उस वक्त मुझे अगर तकलीफ हुई तो मैं सहन करती हूँ। मैं कुछ ऐसा एक्सटर्नल एप्लीकेशन जैसे वो कुछ भी अप्लाई कर लेती है। और बोली कि मैं चुपचाप पड़ी रहती हूँ, मतलब मैं किधर नहीं जाती। बहुत ज्यादा ही बोली लगा सहन नहीं हो रहा है, तो मेरे इन लॉज को वगैरह बोल के फिर हम डॉक्टर के पास जाके बस टाइम बिंग के लिए वो 1-2 दिन का जो डोज देते हैं या इंजेक्शन देते हैं उतना लेके मैं आती हूँ। लेकिन मैं कंटिन्यूअस मेडिसिन नहीं ले रही हूँ, क्योंकि मैं अभी परेशान हो गई हूँ ये चीज से। ठीक है, तो दिस इज द केस। कुछ आपको कुछ बताना है तो प्लीज बताइए। और फिर एक चीज मैंने उसको हाँ ये पूछी थी कि कुछ ऐसा है तुम्हारे एनवायरनमेंट में कि जो तुम्हें हजम नहीं हो रहा है, जो डाइजेस्ट नहीं कर पा रही हो? तो बोली नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग क्योंकि इन लॉज नहीं है, मतलब फादर इन लॉ और मदर इन लॉ नहीं है, तो हम मतलब उसके हस्बैंड के 4 भाई है। तो बोली कि हम चारों की फैमिली अलग अलग रहती, एक बंगला बनाया है, हर एक फ्लेवर पे हर एक इंसान रहता है, ऐसे उसने बोला। फिर उसके बाद बड़ा सा स्मार्टफोन था उसके हाथ में पकड़ा हुआ, और वो बीच में किसी को फोन भी कर रही थी। मतलब उसका केस होने के बाद उसने फोन भी किया, तो शी वॉज यूजिंग इंग्लिश वर्ड्स। ठीक है, वो
और मैंने उसका 10 मिनट बाद उसको एक डोज देके बिठाया, 10 मिनट बाद फॉलो लिया तो उसका दर्द कम हो चुका था। किसी को कुछ बताना है? हेलो हेलो, केस समझा? अरे बोलो तो सही, हाँ या ना, कुछ तो बोलो। मैं ऐसी पागल जैसी बड़बड़ कर रही हूँ। समझा दी, समझा। चलो बताओ फटाफट, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। चलो जल्दी। क्या समझा वो तो बोलो, भले रुब्रिक्स मत बताओ, रेमेडी मत बताओ, बट क्या समझा वो तो बताओ। मैडम डिस्कंसर्टेड की फीलिंग आ रही है ग्नीसिया की। किसकी? डिस्कंसर्टेड। क्यों डिस्कंसर्टेड? उसने इलाज छोड़ दिया है और वो मामा के कहने पे आई है आपके पास। सर जब बीमारी 2-3 साल की हो जाए और बार बार किसी को डॉक्टर के पास जाना पड़े, एडमिट होना पड़े, तो ये कैसा रहेगा? मतलब वो पर्सन के लिए कुछ चीजें फिर कॉमन हो जाती है ना। दो तीन साल के बीमारी के बाद भी बंदा हाई स्पिरिटेड है तो हम वो चीज सोच सकते हैं, क्योंकि वो स्ट्राइकिंग है। इतना अगर किसी को तकलीफ हो रही है कि वो ऑलमोस्ट गिव अप कर दिया जैसा, ये खुद का काम भी नहीं कर सकते, वो भी छोड़ना पड़ता है, तो वो तो फीलिंग रहेगी ना कि वो थक गई है, अभी कंटाला आ गया है। ते डेल्यूजन परसिक्यूटेड है का मग? वो डेल्यूजन परसिक्यूटेड है? वही बोल रही हूँ ना, परसिक्यूटेड कॉमन हो जाएगा ना, परेशान हो गई तो 2-3 साल की बीमारी में हम लेंगे क्या इसको? 2-3 दिन हफ्ते की बीमारी है तो हम ले सकते हैं, बट जो लॉन्ग स्टैंडिंग इलनेस है वहां पे हम परसिक्यूटेड लेंगे क्या? नेचुरल है ना वो परसिक्यूशन आना इंसान में। परसिक्यूटेड तो पिक्यूलियर नहीं होगा ना ये केस में। हाँ वही, पिक्यूलियर चाहिए ना हमको, प्रिस्क्रिप्शन के लिए पिक्यूलियरिटी नहीं है वो। एकदम सिंपल है, मतलब ये केस में पता चले। होपलेसनेस, जी होपलेसनेस, होपलेसनेस, होप छोड़ चुकी है। आप सब लोग वही चीजें अलग अलग वर्ड्स बोल रहे हैं, मैं वही बोल रही हूँ कि होपलेस क्यों सर, उसने क्या बोला, क्या ऐसा होपलेस? हाँ, बहुत जगह जा चुकी है, अब कोई ट्रीटमेंट नहीं करानी है। लास्ट नहीं में वो जाके जाके यहाँ आपके पास आने के लिए बोला किसी सर, ने। आप समझ में नहीं आ रहा है, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। वो लास्ट में आपके पास आई, बहुत इलाज करा के आपके पास आई, तो उसने होप छोड़ दिया कि मैं सही होगी या नहीं होगी। क्योंकि उसने काफी ट्रीटमेंट ले चुकी है तो अभी उसने छोड़ दिया। मतलब ऐसा नहीं कि वो डॉक्टर के पास नहीं जाती, जब उसको बहुत ज्यादा तकलीफ होती तो वो जाती है ना, इंजेक्शन वगैरह लेके आती। ओके, हाँ। अगर आपने अच्छे से सुना होगा मैंने क्या बताया केस के बारे में, तो बहुत सिंपल है। सिर्फ होम्योपैथी सिंप्लीफाइड मतलब आपको आपकी आंखें और कान एकदम, वी शुड कीप अवर आईज एंड ईयर्स ओपन, तो इसमें ही सब कुछ आ जाता है। तो बहुत कम समय में आप ये कर सकते हैं, रेमेडी तक पहुंच सकते हैं। मैम इसमें बताया कि जब मैं अकेली होती हूँ तो सहन कर लेती हूँ, जब सब घर में रहते हैं तो आई कैन नॉट टॉलरेट लाइफ नहीं, घर समथिंग। में कोई नहीं रहता ना,
दोनों डॉटर्स की शादी हो चुकी है, वो अपने अपने घर पे है। इनके हस्बैंड फिशिंग के लिए जाते, तो 8-10 दिन वो नहीं रहते, फिर वो कुछ टाइम तक रहते, फिर वो अगेन वापस जाते, तो नहीं रहते। तो ज्यादा हो जाता है तो वो उसके इन लॉज को, मतलब उसके देवरानी जेठानी ये सब ऊपर नीचे ही रहते हैं ना, 4 फ्लोर का इन्होंने बंगलो बनाया है। तो हर एक जन हर एक फ्लोर पे रहता है। तो फिर बहुत ज्यादा हो जाता है, सहन नहीं होता, तो फिर वो बोली कि मेरे जेठानी के बच्चे को वगैरह मैं बुला लेती हूँ, और फिर जाते हैं डॉक्टर के पास, तब तक वो सहन कर लेती है। ओके मैम। क्योंकि वो बोली कि अभी मतलब गोलियां खाने का ही कंटाला आ गया मुझे, कितना खाने का गोली, इसके लिए शी अवॉइड टेकिंग मेडिसिन। बट बहुत ऐसा जान पे आ जाता है तो फिर शी हैज टू डू। चलो जल्दी, सिंपल है यार, आप लोगों ने सुना नहीं क्या, इतना क्लियर कट केस है। वाई अफेक्टेशन? मैम जैसे आपने बोला कि इसके पास एक बड़ा सा मोबाइल था और बीच बीच में जो फोन आ रहे थे उसमें वो कुछ इंग्लिश वर्ड्स यूज कर रही थी, और से वो स्टाइल मार रही थी, थोड़ा आपको इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही थी। क्या इम्प्रेस किया? मैं नहीं इम्प्रेस हुई उससे। और एक आप नहीं हुए और एक चीज, मतलब उसको फॉलो हुआ, फिर उसको अच्छा लगा, उसके बाद के फॉलो अप्स में ऑफ कोर्स शी सेंड्स मी मेनी पेशेंट, बहुत पेशेंट भेजती है वो, और वो बोलती है कि तू तो मेरी दोस्त है अभी, मतलब ये एक्चुअली जो कोली कम्युनिटी रहते हैं ना, दे आर वेरी अफेक्शनेट, बट वो आपको आप वगैरह बोल के नहीं बुलाते, वो अरे तुरे ऐसा डायरेक्ट ऐसे ही बुलाते हैं किसी से भी, मतलब वो जीपी के पास जाए या कंसल्टेंट के पास जाए, कितने भी बड़े हॉस्पिटल में जाए, डॉक्टर हो लॉयर हो कोई भी हो, वो आपको कभी भी जिसको हम रिस्पेक्ट बोलते हैं ना कि आप करके हम बुलाते हैं, वैसा नहीं बुलाते, वो तुम ऐसा ही बुलाते हैं। और बट वो रूड नहीं लगता, डिसरिस्पेक्ट नहीं लगता, वो एवरीबडी इज लाइक दैट, मेल फीमेल, छोटे बच्चे बड़े, कितना भी एल्डरली हो, यंग एज में हो, बट वो अफेक्शनेट बहुत रहते हैं उनके, वैसे बात में भी अफेक्शन रहता है। तो वो बोलती कि तू तो मेरी दोस्त है अभी। और एक बार क्या हुआ, इसकी बेटी आई थी मेडिसिन लेने, बेटी मतलब इसके ग्रैंडसन के लिए मेडिसिन लेना था, और इसकी शायद सिस्टर या कोई दोस्त वगैरह आई थी, और इसके फादर का मेडिसिन भी लेके जाना था। और ये लड़की, ये जो पेशेंट है वो मार्केट में थी, फिश बेच रही थी। फिर उसने उसको पता था कि उसकी बेटी यहाँ पे आई है, तो बीच में उसने कॉल किया और मुझे फोन देने बोला बेटी को, और बोला कि पैसे मत लेना, हाँ मैं इनके पैसे पे करूंगी। मैंने बोला ठीक है। फिर उसने आज तक मुझे वो पैसे नहीं दिए। और उसके बीच में मैंने एक बार घर पे गेस्ट आने वाले थे, तो उसको बोला था मुझे फ्रेश फिश ला के देना और पैसे लेना। मैंने जैसे ही एक हाथ से फिश लिया, दूसरे हाथ उसको जो भी अमाउंट थी मैंने उसको पे की। और उसी के 1-2 दिन पहले इसने ये उधार रखा था मेरे पे, लेकिन इसने कुछ बोला नहीं कि आपके मुझे भी आपके पैसे देने हैं तो आपको कट करके दे दो, या मतलब उसने वो रिटर्न वगैरह कुछ किया नहीं। और जो भी मैंने फिश उसको बोला था उसमें उसने और एक वैरायटी का फिश ऐड किया, थोड़ा सा पीस, और बोली कि ये मेरी तरफ से है, ठीक है। और एक दिन उसने कुछ फिश का करी बना के वो अपने आप ही खुद से ही लाई थी कि ये डॉक्टर आपके लिए है करके।
फिर रिसेंटली मैंने मेरे रिसेप्शनिस्ट को बोला, वो पेशेंट आएगी तो उसको बोलना कि उसके पैसे बाकी, क्योंकि 3 पेशेंट का पैसे बाकी थे, तो 100-200 हम छोड़ सकते हैं, लेकिन तो फिर जब उसको बोला मेरे रिसेप्शनिस्ट ने कि आपके पेमेंट बाकी है पहले का, तो बोली कि किसने पेमेंट बाकी रखा, कौन है जो मेरा नाम खराब कर रहा है, मैं इतने पेशेंट भेज रही हूँ और इन लोग ऐसे पैसे उधार रखते हैं आपसे, मेरा नाम खराब कर रहे। तो मैंने बोला कोई नहीं आपका नाम खराब कर रहा है, आपके खुद के फैमिली के आपके पैसे उधार है। तो बोली अरे मेरे को तो याद ही नहीं, ऐसा कुछ बड़बड़ की, लेकिन फिर भी उसने पैसे नहीं दिए। उसके बाद भी वो आई 2-4 बार, लेकिन तभी भी उसने पैसे नहीं दिए। मतलब इतना क्लियर कट बोलने के बावजूद भी पैसे नहीं दिए। और फिर कभी बोलती है क्या तू तो मेरे को फोन ही नहीं करती, मतलब मैं क्या अभी उसकी दोस्त हूँ कि मैं उसको ऐसे ही कॉल करूंगी, क्यों करूंगी मैं कॉल उसको, तुझे तो मेरी याद ही नहीं आती। मैं तो पेशेंट को बोलती हूँ कि जाओ, वो तो मेरी दोस्त ही है, ऐसे। तो अभी समझो, चलो अभी बहुत बड़ा क्लू दे दिया मैंने। ये तो पल्सेटिला ही होगी फिर यूजरर। अभी फॉस्फोरस। क्यों या तो पल्सेटिला, क्यों फॉस्फोरस, जस्टिफाई करो अपने रेमेडी को। ब्रदरहुड सेंसेशन और अफेक्शनेट, अफेक्शन रिटर्न्स अफेक्शनेट। जी क्या बोला राधिका? अफेक्शन, अफेक्शन रिटर्न्स अफेक्शन एंड ब्रदरहुड सेंसेशन क्या एवरेज में रिटर्न है। अफेक्शन कैसे? वो आपको कुछ कुछ बना के देती है ना। में रिटर्न अफेक्शन क्या है? मैंने उसको कुछ अफेक्शन नहीं दिया, मैं बस आई एम डूइंग माय वर्क एंड आई एम टेकिंग फीस फॉर दैट, आई एम जस्ट डूइंग माय वर्क, और शी इज नॉट। रशीदा ने कुछ नहीं बोला है, देखो। हाँ Rashida said something. Please check. She has written a message. Rashida. ओके। हिपोक्रेसी, क्यों हिपोक्रेसी? मीन्स दोहरा मापदंड बोलते हैं ना, हिपोक्रेसी, यानी आपके सामने अच्छा बिहेव कर रही है, मतलब अपना अपने आप को ऊंचा बता रही है, लेकिन अंदर से शी इज क्या बोलेंगे, एक वैसी नहीं है जैसे आपके सामने वो बता रही है कि बहुत दिल वाली है, अपना कॉन्टैक्ट्स बता रही है। और उसको पता होगा ना कि इतना उधार है आपके ऊपर, शी मस्ट बी नोइंग, लेकिन आपके रिसेप्शनिस्ट या आपके सामने वो उसका नाटक कर रही है कि उसको कुछ नहीं पता है। वो अपने पेशेंट्स जो उसने भेजी है उस पर वो ब्लेम कर रही है, यानी अपने आप को एक हाइड करने की कोशिश कर रही है, उसका जो लूप होल है। ओके ठीक तो है। वो ये मुझे मतलब आपके सामने कुछ और पीछे कुछ और, तो वो मतलब हम्म। hypocrisy है। हाँ, और भी क्या हो सकता है ये? चार्लेटन। क्यों चार्लेटन? शहानी बन रही है ना ज्यादा ऐसे। पैसे किसने ये किए, खुद ही बोली कि पैसे मत लो, मैं देती हूँ, खुद ही बोल रही है कि किसने ये किया, मतलब खुद का जो है वो छुपा कर ऐसा डेढ़ शानी जैसे बन रही है। तो इसको चार्लेटन लेंगे? मैडम ब्राउनिया है क्या जो है ये? चार्लेटन का मीनिंग क्या है? मैडम ये ब्राउनिया लग रही है। क्यों ब्रायनिया, एक मिनट है सर, चार्लेटन का मीनिंग क्या है? पाखंडी। शहानी, शहानपना करणे जास्त। नहीं, शहानपना इज, डेढ़ शहाणे बनणे. चार्लेटन इज अ पर्सन क्लेमिंग टू हैव अ स्पेशल नॉलेज, और उसमें अगर डिक्शनरी में हम लोग देखेंगे ना तो उसमें स्पेसिफिकली लिखा है अबाउट साइंटिफिक चीजों के बारे में, पेशेंट क्लेम्स टू हैव अ स्पेशल नॉलेज। सो यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं है, और अगर हम साइंटिफिक का भी नहीं सोचते तो भी यहाँ पे कुछ स्पेशल नॉलेज वाली बात नहीं आ रही है ना यहाँ पे, दिस इज नॉट चार्लेट।
ब्रायनिया किसने बोला था, क्यों ब्रायनिया? मैडम जब उसको पेन होता है तो रेस्ट करती है। पेन होता है तब रेस्ट रेस्ट करती है। क्या करती है? रेस्ट 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 करती है। नहीं समझी सर। रेस्ट आराम रेस्ट करती है, रेस्ट। आराम करती है। रेस्ट रेस्ट करती है। और मैडम एवेरिस लग रही है, बार्गेनिंग कर रही है। जी, बार्गेनिंग और एवेरिस लग रहा है इसके अंदर। ओके, बार्गेनिंग कैसे समझा सकते हैं आप? बार्गेनिंग ये कर रही कि वो आपको वो भेज रही है मरीज, इसलिए वो पैसे नहीं देना चाह रही अपनी। और जब ज्यादा दर्द होता तभी दवा लेती है, रेगुलर इलाज नहीं करा रही है। ओके, बट उसने कंटिन्यू कोर्स किया है उसका, अभी शी इज फाइन। तो अभी तो सिर्फ वो किधर जैसे दे गो फॉर लॉन्ग टूर 1-1.5 महीने के लिए, जब भी अभी बारिश चालू होती है तो फिशिंग बंद हो जाती है ना स्टार्टिंग में, तभी वो 1-1.5 महीना घूमने चले जाते हैं, किधर उनके है कुछ लोकेशन ऐसे, वहां पे वो जाते हैं। तो फिर वो प्रिकॉशन के लिए सिर्फ मेडिसिन लेके जाती है मेरे से, क्या मैं बाहर जा रही हूँ तो मुझे वहां पे तकलीफ हुई तो मेडिसिन दे देना करके। अभी उसको कोई तकलीफ है नहीं इससे। और मानिक सर, आप बता रहे थे कुछ पहले। देखो, मैंने सिर्फ 2 ही रूब्रिक्स लिए थे। बार्गेनिंग भी हम यहाँ पे ले सकते कि एक हाथ से दे रही है तो वो दूसरी जगह से बराबर अपना वसूल कर रही है, वो कुछ फ्री में वगैरह नहीं दे रही है, उसने मेरी मस्त एक बड़ी अमाउंट अपने पास खाते में रख दी है, ठीक है ना। तो बार्गेनिंग हम ले सकते हैं, एक हाथ से वो लेन देन ऐसा कर रही है ना, इन टर्न ऐसा हम देखें तो शी इज बार्गेनिंग। तो मैं डिस्क्लोज करती हूँ, अभी ऑलरेडी 6:15 हो गए। तो पहली चीज सब लोग ने मिस कर दिया, मैंने पहले ही बोला था, वो आई वैसे ही पूरा टेबल पे लीन हुई थी और थ्रू आउट द केस वो वैसे ही थी, ठीक है। और उसने रेफरेंस बताया कि मामा ने भेजा है, उनका नाम बताया। तो ये क्या है? तो दिस इज क्लिंगिंग ग्रास क्लिंगिंग अदर्स, ठीक है। वो जैसे ग्रास मतलब कस के पकड़ना ना, उसने अपना रेफरेंस भी दिया, प्लस यहाँ पे भी वो एकदम झुक के बैठी है, मतलब आई हैड टू टेक माय कैमरा बिहाइंड, इतना पीछे लेना पड़ा तब वो जाके, वो फिर भी उसका वीडियो देखेंगे तो एकदम क्लोजअप वाला जैसे है, सिर्फ उतना उसका ये जो पोर्शन है एकदम आगे आई हुई, उतना ही मतलब इतना वो आगे आई। हेलो, अरे यार, घर में बड़बड़ करते हैं तो म्यूट तो करो। दूसरी चीज मैंने लिया था अफेक्टेशन, आपने सुना, उसने बोला कि घर में 4 फ्लोर का मतलब बंगलो है और हाँ, हम सब अलग अलग फ्लेवर पे रहते हैं, उसने बोला, ठीक है। तो मैंने भी वही प्रोनाउंस किया था, अगर आपको याद होगा कि हम एक एक फ्लोर फ्लेवर पे सेपरेटली रहते, तो फ्लोर की जगह वो फ्लेवर वर्ड यूज कर रही है। बड़ा सा मोबाइल अपना उसने ऊपर उसमें हाथ में पकड़ के रख दिया है टेबल के ऊपर। फिर जब भी उसका केस हो गया, फिर वो किसी को फोन लगा के बात कर रही थी, उसमें भी वो एकदम स्टाइल में बात कर रही थी, ठीक है, इंग्लिश वर्ड्स यूज कर रही थी। तो अगर हम क्लिंगिंग ग्रास्प एट अदर्स और अफेक्टेशन ले, आई वांटेड टू टेल यू दिस कॉम्बिनेशन, जो सर ने हमें कुछ कुछ कॉम्बिनेशन ऐसे पढ़ाए हैं कि
अगर हम बाहर भी है और पेशेंट देखना है, रेपर्टरी भी नहीं है, तो भी हम दे सकते हैं। तो क्लिंगिंग ग्रास्प एंड अदर्स एंड अफेक्टेशन लेंगे तो ओनली पल्सेटिला कम्स। ठीक है, अभी आपको पल्सेटिला के सारे रूब्रिक मिलेंगे। आप बार्गेनिंग लो या फिर मैरिज, आइडिया ऑफ मैरिज अनएंड्योरेबल, अगेन आप इसमें सोच सकते हो उसको दवाई नहीं लेनी है, उसके लिए इसने सारी दवाई वगैरह बंद कर दी है। एवराइज है, अनग्रेटफुल एवराइज फ्रॉम, बट ये सब चीज मैंने नहीं लिया था क्योंकि वो पेशेंट भी भेज रही है, तो बस पैसे नहीं दिए इसके लिए, वो इतने से बात के लिए। अनग्रेटफुल इज अ बिग वर्ड, तो किसी को अनग्रेटफुल लेबल करना इज नॉट गुड। तो मैनिपुलेशन हो सकता है, कुछ भी, मतलब इतना दोस्त दोस्त बोल रही है, इतना वो करीब आने की कोशिश कर रही है वो। तो क्लिंगिंग ग्रास आप लोग नहीं पकड़ा आप लोगों ने। मुझे तो लगा था ऐसा 5 मिनट में फटाफट ये केस हो जाएगा। सो दिस वाज पल्सेटिला। उसको इमीडिएटली 10 मिनट्स में एक डोज देके पल्सेटिला 30 का मैंने बिठाया था उसको। 10 मिनट्स में वो बोली कि हाँ अभी आराम लग रहा है, पेट में दर्द होने का अभी मुझे कम लग रहा है। और पहले वो आई थी तो एकदम ऐसा फेस बना के, मुझे नहीं एक्सप्रेशन आते, उसने पल्सेटिला का वो पीटीएस वाला एक लुक होता है ना, वैसे एकदम रोतड़ा फेस जिसको हम बोलते हैं, वैसा वो आई थी। लेकिन 10 मिनट्स बाद आई कुड सी डिफरेंस इन हर एक्सप्रेशन ऑल्सो। फिर 10 डेज बाद वो आई तो देयर वाज नो पेन, एब्सोल्युटली शी वाज फाइन। और उसके बाद अभी तक हार्डली उसको कभी ऐसा बाहर वगैरह गई है, एक आध बार कुछ खाना पीना हुआ उल्टा सीधा तो उसको पेन हुआ है, बट वाटर डोज लेती है तो इमिजिएटली उसको अच्छा लगता है। तो दिस वाज पल्सेटिला। तो बेसिकली आज होम्योपैथी सिंप्लीफाइड में से मुझे ये बताना था कि अगर हम अच्छे से सोचे, वाइजली सोचे, एम्पथाइज करें, तो बहुत कम रूब्रिक्स के साथ हम राइट रेमेडी तक पहुंच सकते हैं। और सो कॉल्ड एलोपैथी में जिसका ट्रीटमेंट होता है नहीं होता है वो मैं उस पर कमेंट नहीं कर सकती, बट पेशेंट थक जाते हैं ट्रीटमेंट लेके, फिर भी वो एक होप छोड़ देते हैं कि ठीक नहीं होंगे, बट हम उनको बहुत कम ड्यूरेशन में, कम वक्त में हम उनको ठीक कर सकते हैं। बट उसके लिए हमें अपने, जैसे मैंने बताया कि वी शुड कीप आवर आईज एंड ईयर्स ओपन and we should prescribe wisely. Right, remember, right homeopathic medicine never fails. It works wonder. Trust me, it works wonder. इतने सर के गाइडेंस में हमने इतने केसेस देखे हैं, डिफिकल्ट केसेस देखे हैं, एंड it has proved again and again that homeopathy works wonder. But we have to prescribe wisely and with empathy, कीपिंग अवर आईज एंड ईयर्स ओपन। अगर वहां पे हमने मिस कर दिया तो खत्म। अदरवाइज हम खुद ही होम्योपैथी को कॉम्प्लिकेट बना देते हैं कि अरे नहीं होता है, या फिर हम इतना एक एक घंटा पेशेंट को पूछते बैठेंगे तो पेशेंट वैसे ही परेशान हो जाएगा कि अरे क्या पूछ रहे हैं ऐसा। तो विथ माइंड मेथड इट बिकेम सो इजी टू प्रिस्क्राइब। मैंने मेरे खुद के प्रैक्टिस में जो पहले 3 साल का प्रैक्टिस था और अभी इट्स मोर देन 7 years आई एम इनटू माइंड मेथड। और ये जो 7 years में सर के गाइडेंस में जो भी एक ट्रांसफॉर्मेशन देखा है, सो ट्रांसफॉर्मेशन इज अ बिग वर्ड कि, बट आई कैन से today proudly ki I have seen transformation in my practice, and this is only because of sir and sir's teaching and because of mind method, MML, mind method by Dr. Liaquat sir. तो हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम पहले ही केस देख के डर जाते हैं, अरे इतने डॉक्टर से ठीक नहीं हुआ तो हम से कैसे होगा। सो इफ यू विल लर्न mind method, you will get that confidence to treat any and every case coming to you. नहीं आता है तो sir is always there to guide us everyone. सर ने कभी ऐसा नहीं बोला है कि जो
मतलब मैं किसी को गाइड नहीं करूंगा, या जो नए हैं, या मैं सिर्फ मेरे कोर मेंबर्स को ही गाइड करूंगा, ऐसे सर ने कभी नहीं बोला। ऐसा होता तो सर इतना बड़ा प्लेटफॉर्म कभी भी क्रिएट नहीं करते थे, ठीक है ना। तो सर इज ऑलवेज देयर टू हेल्प। यू कैन कंसल्ट दैट पेशेंट टू सर। आप सर का फीस पे करो पेशेंट से और करवा दो, फॉलोअप तो आपको देखना है। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ माइंड मेथड. So you will never fail if you prescribe wisely. So this is what I wanted to share. Thank you so much. किसी को कुछ डाउट्स है? मैम हाँ बोलिए। मैम आपने क्लिंगिंग ग्रास पेट अदर्स क्यों लिया? मतलब क्लिंगिंग फर्नीचर भी ले सकते थे ना इसमें। अब क्या रुब्रिक है वो? क्लिंगिंग पर्सन और फर्नीचर। और तो फर्नीचर, वहां पे हाँ। क्या होता है कि देखो, मैं वापस बताऊंगी कि सर हमेशा बोलते हैं कि रुब्रिक पूरा पढ़ो, और उसमें वो पूरा रुब्रिक में ही सब होता है। जैसे कंप्लीट रेपर्टरी में काफी रुब्रिक बहुत अच्छे से कंप्लीट, दैट इज व्हाई दिस इज द कंप्लीट रेपर्टरी, राइट। तो रुब्रिक इज क्लिंगिंग पर्सन और फर्नीचर, आइदर पर्सन और फर्नीचर। पर्सन ट्रीट्स, हम फर्नीचर का यूज कभी करते हैं, कब करते हैं हम फर्नीचर का यूज? जब भी हमें जरूरत होती है हम यूज करते हैं, अदरवाइज कोने में पड़ा रहते हैं, राइट। फर्नीचर किसने पूछा था? यस 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 मैम। ओके, तो इन द सेम वे पर्सन और फर्नीचर है। वो इंसान सामने वाले से जब भी काम है तभी उसके लिए उसके साथ अच्छा रहेगा, बात करेगा, अदरवाइज तू कौन मैं कौन। मतलब इट इज लाइक फर्नीचर। फर्नीचर पड़ा हुआ रहता है, हम रोज देखते भी है क्या उसको? जब लेकिन जरूरत है तभी उसके पास जाते हैं ना। तो काम रहेगा तभी वो तुम्हारे पास आएगा, नहीं तो तू कौन मैं कौन, ऐसा। सो दिस इज स्विंगिंग पर्सन और फर्नीचर। यहाँ पे तो वो पूरा टेबल पे झुक गई है, प्लस वो उसका रेफरेंस भी बता रही है कि मामा ने भेजा है, बिकॉज शी नोज कि मामा हैज अ पॉलिटिकल बैकग्राउंड हमारे एरिया में। और ये पेशेंट जो है वो मेरे से बहुत करीब रहते हैं, मतलब हार्डली 10 मिनट्स ऑफ डिस्टेंस। तो वो हमारे एरिया में उनके मामा फेमस है एज अ सोशल वर्कर ऑल्सो, एंड बीइंग अ पॉलिटिकल। उनके मामा का बेटा सरपंच है हमारे एरिया में। प्लस वो मेरे से दोस्ती भी कर रही है, इतने सारे थ्रू आउट उसका चल रहा है ना। तो वो थ्रेड जो है वो ग्रास वाला है कि कस के पकड़ा है उसने, ठीक है। ओके मैम, ओके मैम, क्लियर? थैंक यू। यस यस ओके। Okay, Veda. Thank you very much, beta. Any questions they can ask Dr. Pulita madam. Hello friends. Hello. Anybody has any questions for madam? Even for sir. Even for me. मुझे मत पूछो, please. I think. Hello, any questions? Nice. We have crossed the time. So we will divide your lecture today's into two, and then we'll post 2 lectures on YouTube, not one full lecture. All right. So I believe that there are no questions, and I think both the cases were wonderful. Very simple looking, seemingly very simple because you explained them very simply. That's why they were looking very simple. But I'm sure it is very difficult when it is like in front. But of course, the way you picked up now, it is Sir, so आवाज simple. खूप कमी येते. Okay. The way you have 1 second. The way you have picked it up now, Pranita, it is very simple. And yes, I tell you, mind is very, very simple, guys. Okay. So thank you very much, Pranita. It's an honor always, beta. It's a moment of pride when I see all my children are growing so well and they're explaining so well, and now you have become a full-fledged speaker as well. So very nice. Very soon I'll be seeing you as a speaker. Otherwise, also. Thank you very much, friends, for being there and
Thank you. bearing with us over and a half hours. Though we feel that the lecture should go on. Yeah, I really feel the lecture should go on. Thank you very much. Please do subscribe our channel and then again comment there more than what you're commenting here. Thank you, thank you, thank you. ऐसे जो comment डाल रहे हो YouTube पे जाके डालो. YouTube पर जाकर सभी लोग please go to the YouTube channel and then after this lecture you please write down your comments on YouTube. Thank you, Pranita. Thank you, everybody. God Thank you bless. so much, See sir. you all in the Thank you next very lecture. और एक चीज I think next lecture जिसको will भी be सर mine. से सीखना है पर्सनली तो वी हैव ऑनलाइन कोर्सेज तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो. आज का जो फ्लायर है उसमें मेरा नंबर है. तो वी हैव डिफरेंट कोर्सेज. आपको फोन पे डिटेल्स में बताया गया जाएगा. तो आप भी इसी तरीके से बहुत इजीली और सिंपली बाय टेकिंग वेरी फ्यू रूब्रिक जैसे 2-3 रूब्रिक लेके भी केस तक कैसे पहुंचना है, केस को मेटाफोरिकली कैसे समझना है. तो ये जो मैरिज वाला रूब्रिक था जब हमें सर ने सिखाया तो एकदम ही अलग ही थे उस दिन. मतलब कि कैसे इसको मेटाफोरिकली रिलेट कर सकते हैं. कभी भी ऐसा नहीं सोचा था. ये तो हम एक्चुअल मैरिज वाला कोई किसी का रहेगा तो ही सोच सकते थे. बट ये केस में भी मेडिसिन के बारे में उसको मेटाफोरिकली कैसे लेना है ये यू कैन लर्न ओनली फ्रॉम सर. So we are really blessed to have a guru like you, sir. Thank you so much. Thank you. Thank you, Bella. Thank you. It's a very important rubric. I use it very often, this marriage rubric, Yeah. and you will see this rubric very often. Okay. So thank you. Thank you very much. I Thank you, sir. conclude. Bye.